नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर, दक्षिण इजराइल में अशदोद पहुंचा एनडीटीवी। अशदोद में पास स्टेशन पर हुआ था हमला। अशदोद पहुंचने वाला अकेला भारतीय टीवी न्यूज चैनल है। एनडीटीवी 3 घंटे पहले हुआ था पास स्टेशन पर हमला और अब एनडीटीवी की टीम, हमारे सहयोगी इस वक्त अशदोद में ही मौजूद हैं, जहां पर पास स्टेशन पर यह बड़ा हमला हुआ था, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी अंकित त्यागी, जो अशदोद में ही हैं। कितना बड़ा हमला था, कितनी बड़ी तबाही, अंकित? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा सिकता कि ये पहली बार है कि यहाँ इजराइल में जब से जंग चल रही है कोई ईरानियन मिसाइल किसी इलेक्ट्रिसिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस तक पहुंचने में कामयाब हुआ है। यहाँ पर अब 10:30 बजे जो लोकल टाइम है, करीब 3 घंटे पहले यहाँ पर वो हमला हुआ था। उसके बाद मैं पहले आपको तस्वीरें दिखाने से पहले मैं इस वक्त मिस्टर रबूकी के पास जाना चाहता हूँ, जो यहाँ पर इंचार्ज हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। कुड यू टेल अस व्हाट हैपेंड एंड व्हाट टाइम डिड द impact of the Iranian missiles that took place here? Good morning. As a matter of fact, we're in on the 10th day of the Iranian attacks on the civil networking and on the civilians of Israel. And as every day we see such damages, and today morning something like 10:30. One Iranian missile failed near our facility. Ours, that means Israel Electric Company. We're the company that supply the electricity to the civilians of Israel and to the Israel network. It takes in our dispatch center something like 10 minutes to understand what's going on. And immediately after this, we sent here our teams to understand what is the damage. In the first very moment, it was there was something like 8,000 customers that were disconnected from the network. 8,000. 8,000 civilian homes. Yeah, civilian homes. But in the next 40-45 minutes, we connect them from our other facility. Israel Electric Company network is very, very strong, is very robust, and we are very good experienced in such kinds of operations. And less than 1 hour of our customers were connected back. Is this the first time that the Iranian missiles have been able to penetrate and hit a facility like this, a power facility in Israel? Not the first time. They do their best, but we also do our best. And as you see, even during the last 10 days that Israel was permanently attacked, we don't have any big outages and disconnections of the population. We are here, our teams are here, they are very good trained, very good experienced, and I would like to say the brave. And immediately when it's possible from the military point of view, our teams arrived to our substations, to the site, and do all repairing works. And I'm sure that until the evening everything will be completely repaired. What kind of work is going on as we see behind us? I mean, there are some transformers work going on. So what kind of work is going on at this moment? Yes, as you say, some transformers were damaged, some cables were damaged. And we know what to do in such kind of situation, and in such situations, even more severe situation, and all these works will be completed in the next hours. Thank you so much for speaking to NDTV. So, सिकता, जो आप देख रहे थे, जिस तरीके से यहाँ पे बता रहे थे, ये पहला ऑफिशियल रिएक्शन आप देख रहे हैं। और हम इस वक्त पूरे भारत का पहला एक ऐसा मीडिया चैनल है जो यहाँ पर पहुँचे हैं। जो रबूकी साहब बता रहे थे, मैं उसके बारे में ज़रा आपको एक बार बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि कई बार कोशिश की गई है, लगातार जो 13 तारीख से जंग चल रही है, लेकिन पहली बार ये मिसाइल कम से कम यहाँ पहुँचा। इसका मैं ज़रा आपको पीछे दिखा देता हूँ। ये पूरा जो एरिया है, यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ,
सड़क के बिल्कुल साथ में ये इलाका है। तो इसका एक बड़ा ड्रामेटिक फुटेज किसी ने अपने डैश कैम पे जब मोमेंट जो इम्पैक्ट का था उसको देखा। ये पूरी दीवार टूटी हुई दिखाई पड़ रही है, एक बड़ा गड्ढा, वहां पर क्रेटर जो है वो भी हो गया है, और वायर्स जो हैं अब उसको, ये जो सामान यहाँ पर जिस तरीके से इम्पैक्ट हुआ था उन सबको अब ठीक करने की कोशिश की जा रही है। जहां पे मैं खड़ा हूं, क्योंकि इससे आगे हमें जाने की इजाजत नहीं है, जहां पे मैं खड़ा हूं वहां पर भी जो धमाका था वो इतना बड़ा था कि ये दीवार के टूटे हुए हिस्से जो हैं ये आपको यहां पर जगह जगह बिखरे हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके ऊपर हमला है। कल जो ईरान की तरफ से हमला हुआ था उसमें 27 मिसाइल दागी गई थी, उसमें सिविलियन एरियाज जो थे हमने आपको वो दिखाए थे। अब ये पहली बार है कि इस तरीके से एक इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट पर जो हमला हुआ है। आप ये समझ सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो इजराइल कह रहा है कि उनकी तरफ से ताबड़तोड़ हमले ईरान पर हो रहे हैं, उसका जवाब भी ईरान दे रहा है। और आज रात को 3 बजे पहले एक बार सायरन बजा जब हम लोगों को अपने भाग के शेल्टर में जाना पड़ा, और उसके बाद 10:30 बजे। लेकिन फर्क उसमें यह था कि जो रात को हमला हुआ था, रात के हमले को नाकाम कर दिया गया था। बताया गया कि 3 मिसाइल छोड़ी गई थी, तीनों को इंटरसेप्ट कर लिया गया। 10:30 बजे का जो हमला था वो तेल अवीव से दूर, यहाँ पे जो सदर्न इजराइल है जहां पे हम इस वक्त खड़े हुए हैं, वहां पर वो हमला हुआ। एक यहाँ पर जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हूं अशदोद में, इसके अलावा हाइफा और भी जगहों पर जो मिसाइल हैं वो गिरी हैं। कुल मिला के 15 मिसाइल दागी गई थी, जिसमें से नुकसान आप मेरे पीछे देख रहे हैं। कुल मिलाकर अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, जैसे पावर जनरेशन का, इस पर अगर हमला होता है, और जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके आसपास में जो सैन्य हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, यहाँ से कुछ दूर हमें उड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो हमला हुआ है ये इस पूरे लड़ाई में एस्केलेटरी लैडर पर एक और जिसको कहें कि ऊपर जाने वाली स्थिति है, और ऐसा नहीं लग रहा कि कम से कम अभी इस लड़ाई के शांत होने के कोई आसार दिखाई पड़ रहे हैं। सिकता, बिल्कुल संघर्ष बस शुरू ही हुआ है, और अंकित उस जगह मौजूद हैं जहां पर इस वक्त कोई इंडियन टीवी न्यूज चैनल नहीं पहुंच पाया है। अशदोद पहुंचने वाला पहला नेटवर्क है एनडीटीवी, और अंकित त्यागी हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं। अंकित, जो आप बात कर रहे थे, जो स्टेशन इंचार्ज है उनसे, उन्होंने कहा कि 8000 होम्स वर अफेक्टेड आफ्टर दिस अटैक, लेकिन तुरंत कार्रवाई हुई और रीइंस्टॉल हुआ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। ऐसे ये बताइए, अशदोद कितना बड़ा शहर है और इस धमाके से कितना नुकसान वहां पर आप देख रहे हैं? अंकित से बात करने की हम कोशिश करेंगे। तो हम बता दें, धमाके वाली जगह पहुंचा है एनडीटीवी, इकलौता ऐसा टीवी न्यूज चैनल है, इंडियन नेटवर्क है जो इजराइल में अशदोद पहुंचा है, जहां पर 3 घंटे पहले ही ईरानी हमले में एक पावर स्टेशन को उड़ा दिया गया था। और जैसा कि अंकित के साथ जो मेहमान जुड़े थे, जो इंचार्ज हैं इस पावर स्टेशन के, उन्होंने बताया कि करीब 8000 घरों को यहां से बिजली पहुंचाई जाती थी, और इसके हमले के तुरंत बाद कार्रवाई की गई और बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को रीइंस्टॉल किया गया। लेकिन अब जो इस तरह के बड़े इंस्टॉलेशन हैं जो आम नागरिकों से जुड़ते हैं, उस पर अब इजराइल वहां हमला कर रहा है। उधर इजराइल के पक्ष में अमेरिका का ईरान के खिलाफ युद्ध में कूद पड़ने से खाड़ी देशों में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। असल सवाल है कि ईरान अमेरिका के सामने सरेंडर करेगा या युद्ध लड़ेगा। अब तक ईरान के तेवर सरेंडर वाले नहीं लग रहे हैं, बल्कि ईरान की जनता से लेकर उसके आर्मी कमांडर एक जैसी भाषा बोल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि खुद पर हुए हर हमले का इंतकाम लेगा ईरान। इसको समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहां तो ट्रंप 15 दिन तक सोचने समझने का समय ले रहे थे और कहां 2 दिन के भीतर ईरान पर हमला कर दिया। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को मटियामेट कर दिया है। आने वाले दिनों में ईरान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, और अगर ईरान को बचाना है तो वो सरेंडर कर दे। लेकिन ईरान जिस तरह करो या मरो की भाषा बोल रहा है, उससे लगता है कि वो पीछे नहीं हटेगा, बल्कि अपनी पूरी ताकत से आखिर तक लड़ेगा।
इसको समझने के लिए आप ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ जनरल अमीर हतामी को सुनिए। موجب شد که دشمن احساس موفقیت در مورد کارهای خودش رو نداشته باشه و امروز مجبور شد سراغ اون مسئول اصلی این جنایات بره و اون رو مستقیما अगर ईरान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका को खुलेआम करारा जवाब देने की बात कर रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है, ये जान लेना जरूरी है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान ने इतनी मात्रा में संवर्धित यूरेनियम इकट्ठा कर रखा है कि उससे वो परमाणु बम न सही तो डर्टी बम तो बना ही लेगा। अगर ईरान डर्टी बम बना लेता है तो उससे वो इजराइल पर या तो हो सकता है कि अमेरिका पर भी हमला बोल सकता है। डर्टी बम एटम बम की तरह ताकतवर और विनाशकारी तो नहीं होता, लेकिन इसका असर इतना जरूर होता है कि किसी देश की आबादी को बुरी तरह तबाह कर सकता है। मैक्सर सैटेलाइट फोर्डो न्यूक्लियर बेस के पास से 19 और 20 जून की रात को जो तस्वीरें आईं, उनसे साफ दिखता है कि वहां पर काफी संख्या में ट्रकों और गाड़ियों का काफिला खड़ा है। ऐसा अनुमान है कि इन्हीं गाड़ियों में भरकर ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को कहीं और गुप्त ठिकानों पर भेज रखा है। दरअसल ईरान को पहले ही लग गया था कि अमेरिका कुछ करने वाला है, बल्कि उसको ये भी लग गया था कि यूरोपीय देशों के साथ ईरानी विदेश मंत्री की बातचीत से कुछ खास निकलने वाला नहीं है। Iran's nuclear program is peaceful and has always been under the IAEA's safeguards and monitoring. Hence, armed attacks against safeguarded nuclear facilities by a regime which is not a party to any WMD treaties is a serious crime and violation of international law. In this content, I express grave concern on non-condemnation of these heinous attacks by E3 and EU. Iran is ready to consider diplomacy once again. बाईस साल बाद ऐसा हुआ है कि अमेरिका किसी युद्ध में खुद उतरा है। इससे पहले 2023 में वो इराक से युद्ध लड़ा था, लेकिन ईरान को लगता है कि वो इराक की तरह घुटने नहीं टेकेगा, बल्कि आखिरी तक लड़ेगा। इस सोच के पीछे का आधार ये हो सकता है कि उसको अपनी सामरिक तैयारी और दूसरे देशों से बेहतर लगती है। दूसरा आधार ये हो सकता है जिस तरह इजराइल के समर्थन में अमेरिका उतर आया है, उसी तरह ईरान के लिए रूस भी उतरेगा। तीसरा ये हो सकता है कि हर्म्यूज स्ट्रेट को रोककर वो दुनिया पर दबाव बनाएगा कि या तो अमेरिका को समझाओ या खुद भी भुगतने के लिए तैयार रहो। और चौथा आधार इस तनाव के बीच ईरान के लोगों का अपनी अस्मिता के लिए लड़ना है। तेहरान की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जिनका मानना है कि अमेरिका ने जो कुछ भी कर रहा है वो कायराना हरकत है। यह हमला कायरतापूर्ण है। परमाणु ऊर्जा हमारे पास होना हमारा अधिकार है। अमेरिका और इजराइल अपने लक्ष्यों में कभी सफल नहीं होंगे। अमेरिका को इस तरह की आक्रामकता दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। हमें यह बताने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ईरान को इस आक्रामकता का जोरदार तरीके से जवाब देना चाहिए और उन्हें उनकी गलतियों के लिए सजा मिलनी चाहिए। हमें अमेरिका को कड़ी फटकार लगानी चाहिए ताकि वह अपनी गलती न दोहराएं। ईरान की सेना से लेकर आवाम तक के तेवर से अमेरिका भी वाकिफ है और इजराइल भी। इसीलिए अमेरिका और इजराइल लगातार उन ठिकानों पर हमला बोल रहे हैं जहां ईरान के गुप्त परमाणु सेंटर हो सकते हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और इस युद्ध की वजह से यहाँ रह रहे कुछ भारतीय परिवार जो हैं वो चिंतित हैं, परेशान हैं। इसीलिए भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उन इलाकों से भारतीयों को निकालकर वापस देश लाया जाए। इसी की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकित त्यागी। देखिए एक खास रिपोर्ट।
ये जो 3 बसेस आप देख रहे हैं, ये जो सारी बसेस हैं ये इजिप्ट के रास्ते शर्म अल शेख होते हुए नई दिल्ली लोगों को लेकर जाएंगी। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं, जेपी सिंह जो एम्बेसडर हैं, वो भी एम्बेसडर जेपी सिंह भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों को यहाँ पर सुरक्षित निकालने की जो कोशिश है वो इस वक्त जारी है। कुल मिलाकर अब तक 600 से ज्यादा जो हिंदुस्तानी हैं उनको यहाँ से निकाला गया है और ये जो बैच है ये इजिप्ट होते हुए शर्म अल शेख होते हुए ये बैच जो है ये जाएगा और उसके बाद वहाँ से इन्हें दिल्ली लेके जाया जाएगा। एक तरफ ईरान से जिस तरीके से लोग बाहर निकाले जा रहे हैं भारत के ऑपरेशन सिंधु के तहत, यहाँ पर भी आप देखेंगे ये भी जो लिखा हुआ है एम्बेसी के बाहर, एंट्री टू ऑपरेशन फॉर ऑपरेशन सिंधु, और उसके बाद सीधा यहाँ पर एक असेंबली ग्राउंड है, वहां पर लोगों को लेके जाया जाता है जिसके पास एक बंकर भी है। मैं कोशिश करूंगा आपको एक बार जरा वो असेंबली ग्राउंड दिखा दूं, फिर कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की भी। तो ये जो पूरा आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ पर जो हिंदुस्तानी यहाँ से जाना चाहते हैं जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स हैं, नर्सेज हैं, केयर गिवर्स हैं और जो लोग हैं वो सब यहाँ से जा रहे हैं। मैं एक बार आपको दिखाऊंगा जो बसेज हैं उनका यहाँ से जाना जो है वो शुरू हो गया है। एक बस अभी निकली है, 2 और बसेस जो हैं वो यहाँ से अभी जाएंगी और कुल मिलाकर जैसा मैंने बताया 600 से ज्यादा जो भारतीय हैं उनको यहाँ से अभी तक निकाला जा सका है। तो लगातार कोशिश हो रही है कि भारतीयों को वहां से निकालकर यहां देश पहुंचाया जाए। इजरायल में भारतीय दूतावास के राजदूत से बात की है अंकित त्यागी ने। Ambassador of India here in Israel, he's speaking at this moment. लिया जा रहा है कि किस तरीके से कितने लोगों को कहाँ से किस रूट से इवैक्यूएट किया जाए। सो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स और थोड़ा सा, क्योंकि एयर स्पेस क्लोज है इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इवैक्यूएशन प्रोसेस है। लगभग कितने लोगों को सर इस ऑपरेशन के तहत प्लान है, आपको लग रहा है कि? देखिए अभी तक तो कल हम लोगों ने 162 लोगों को भेजा था, आज 182 जो जॉर्डन के थ्रू जा रहे हैं एंड 290 जो इजिप्ट के रास्ते से जा रहे हैं। एंड सिमिलरली डिपेंडिंग हमारे यहाँ जो एम्बेसी है, एम्बेसी में 24/7 कंट्रोल रूम है। हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो कंट्रोल रूम में शिफ्ट वाइज काम कर रहे हैं। जितने भी हमारे इंडियन नेशनल्स हैं जो इजराइल में हैं, स्टूडेंट्स हैं, केयर गिवर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, बिजनेसमैन हैं और जो बाकी विजिटर्स हैं, तो हम लोगों ने हमने काफ़ी एडवाइजरीज इश्यूज किए हैं। एडवाइजरी के थ्रू हम लोगों ने उन लोगों को रीच आउट किया, उनको बोला है कि जो भी जाने के इच्छुक हैं, जिनको लगता है जिस तरीके से सिचुएशन इवॉल्व हो रही है और जो हम लोगों के साथ रजिस्टर कर रहे हैं हमारे कंट्रोल रूम में, तो उसी के हिसाब से हम देख रहे हैं कितने लोगों को भेजना है। तो जो हमारा कंट्रोल रूम है 24/7, उसमें अभी डेटाबेस में काफ़ी लोग हैं जो जाना चाहते हैं। तो अभी 1-2 दिन और चलेगा। जैसे मैंने बोला कि ये डे टू डे बेसिस पे सिचुएशन रिव्यू हो रही है और अकॉर्डिंगली हम लोग डिसीजन ले रहे हैं। एक बात और हमने नोटिस किया कि एम्बेसी के पास बंकर है, अगर मतलब इमरजेंसी में अगर कुछ ऐसा हुआ तो मतलब उनको आप वहाँ पे भेज भी सकते हो अगर इस वक्त सायरन यहाँ पर। देखिए आपने अगर हमारी एडवाइजरी देखी होगी तो हमने एडवाइजरी में हर बार हमने एडवाइजरी में ये बोला है कि होम फ्रंट जो कमांड है, एक ऐप है इधर, अगर आप लोगों ने उसको डाउनलोड किया, जैसे ही सिक्योरिटी अलर्ट आते हैं तो हम लोग बंकर्स में चले जाते हैं और ये आप लोग भी जैसे ही कोई अलर्ट आएगा तो आप लोग बंकर्स में चले जाएंगे। आज भी जो हमने ये जो हमारा असेंबली पॉइंट है जो एम्बेसी के पास में, यहाँ पे आपने देखा होगा एक बंकर है, वो इसीलिए हमने इस लोकेशन को इसीलिए हमने आइडेंटिफाई किया है क्योंकि इन केस अगर कोई सिक्योरिटी अलर्ट आता है तो पीपल आर सेफ, ऑल आर इंडियन नेशनल्स आर सेफ। और क्योंकि मैं इसलिए बताऊँ, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, दिल्ली एक जो दिल्ली हेडक्वार्टर से हमारा मैसेज आता है, जैसे मैंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर साहब और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं। उनका एक सिंपल इंस्ट्रक्शंस है, इनफैक्ट मैसेज नहीं बोलूंगा, एक सिंपल इंस्ट्रक्शंस है कि इंडियन सिटीजन्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसीलिए जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं कि कैसे इवैक्यूएट करना है, किस रास्ते से इवैक्यूएट करना है, इसमें ये सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान के एयर डिफेंस ने इजरायली हर्मिस ड्रोन को मार गिराया है। तो ये महायुद्ध ईरान और इजरायल के बीच जारी है और तीखे हो रहा है ये संघर्ष, ये युद्ध। और ईरान के एयर डिफेंस ने इस बीच इजरायली हर्मिस ड्रोन को मार गिराया है। तो ये एक तरह से वार और पलटवार का सिलसिला जारी है। जब ईरान ने इजरायल के एक पावर स्टेशन पर हमला किया तो ईरान के एयर डिफेंस ने इजरायली हर्मिस ड्रोन को मार गिराया। तो ईरान लगातार पलटवार कर रहा है अमेरिका की एंट्री के बाद और ज़्यादा
तीखे हमले ईरान करने में जुट गया है इसराइल के खिलाफ, और ईरान के एयर डिफेंस ने इजरायली हर्मिस ड्रोन को मार गिराया है। और आप देख सकते हैं तस्वीरें हर्मिस ड्रोन की, जो इजरायली हर्मिस ड्रोन है जिसका ईरान के एयर डिफेंस ने एक तरह से इसे मार कर ख़त्म कर दिया। तो ये बड़ी कामयाबी ईरान के लिए, लेकिन ईरान के एयर डिफेंस के लिए, और इजरायली हर्मिस ड्रोन को मार गिराया है। इस ड्रोन से इजरायली सेना हमला कर रही थी ईरान पर, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने किस तरह से इजरायली हर्मिस ड्रोन को टारगेट किया और उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये तस्वीरें हैं वार पलटवार की, तीखे हो रहा है ये संघर्ष, तीखा हो रहा है ये युद्ध, और अमेरिका की एंट्री के बाद ईरान और ज़्यादा आक्रामक हो गया है इसराइल पर हमला करने के लिए। और ईरान के एयर डिफेंस ने एक बार फिर इजरायली हर्मिस को मार गिराया है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने किस तरह से न्यूट्रलाइज किया है इजरायली ड्रोन को। तो ये ड्रोन की तस्वीरें हैं। हर्मिस ड्रोन इसका नाम है, जो इजराइल का हर्मिस ड्रोन है। ये हमला करने के लिए इजराइल की तरफ से ईरान की तरफ आया था, और ईरान के एयर डिफेंस ने इसे न्यूट्रलाइज कर दिया, इसे ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं स्टिल और मूविंग दोनों, किस तरह से इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको पकड़ा और उसको एक तरह से पूरा ख़त्म किया। और ये तस्वीरें जो दूसरी स्टिल फोटो दिख रही है वो इस ड्रोन की है। इजरायली हर्मिस ड्रोन है जो ईरान की तरफ आया था, लेकिन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे ख़त्म कर दिया, और धुआं का गुबार उठ रहा है। जब ये ड्रोन न्यूट्रलाइज हुआ तो धुआं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव पिक्चर्स आपको पहली बार एनडीटीवी पर दिखाई दे रहे हैं। ईरान के एयर डिफेंस ने इजरायली हर्मिस ड्रोन को मार गिराया है। राजीव रंजन मेरे सहयोगी अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ईरान के एयर डिफेंस ने इजरायली हर्मिस ड्रोन को मार गिराया है। इसकी ताकत कितनी थी हर्मिस ड्रोन की, अगर आप जानकारी दे पाए राजीव? देखिए, बहुत बड़ी बात है। खासतौर से ईरान जो है अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नहीं जाना जाता है, लेकिन उस जो है उस यूएवी को मार गिराया है, हर्मिस को मार गिराया है, जिसको इस्तेमाल जो है निगरानी के लिए होता है, सर्विलांस के लिए होता है, और खासतौर से जो इसका इस्तेमाल विस्फोटक के लिए यानी उस एरिया में मार गिराने के लिए भी किया जाता है। हर्मिस को जो कहा जाए, यूएवी जो कहा जाता है, ड्रोन जिसको कह सकते हैं, वो काफ़ी अत्याधुनिक है, और इसराइल केवल खुद अपने के लिए इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि दुनिया के कई देशों में वो हर्मिस जो है यूएवी बेचता है। और उस यूएवी को मार गिराना ईरान के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत नहीं माना जाता है, और माना यह जा रहा था कि इसराइल ने जो ईरान के जो लगभग जो एयर डिफेंस सिस्टम है के कहें और मिसाइल लॉन्चर कर उसको तबाह कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद ईरान का अपनी ताकत को दिखाना, जिस तरह से उसके जो हर्मिस ड्रोन को मार गिराया, एक बहुत बड़ी बात है। एक कह सकते हैं कि ईरान में अभी कह सकते हैं कि बहुत कुछ दमखम बचा हुआ है, ताकत बचा हुआ है। जो आंक रहे थे, इजराइल आंक रहा था, अमेरिका आंक रहा था कि ईरान की ताकत खत्म हो गई, उसकी कमर टूट गई है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। साफ है कि अमेरिका की एंट्री के बाद राजीव और ज्यादा तीखे हमले ईरान कर रहा है इजराइल पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमेरिका के हमले करने के बाद ईरान झुका नहीं है, बल्कि दोगुने उत्साह के साथ जिस तरह से ईरान पर अपने एक से एक मिसाइल, चाहे खैबर की बात करें, चाहे फतह की बात करें, जिस मिसाइल से हमला कर रहा है, और इजराइल में जिस तरह से तबाही के मंजर आपको चारों तरफ दिख रहा है, उससे लगता है कि ईरान का जो मिसाइल की जो ताकत है, ड्रोन की जो क्षमता है, वो कितनी अधिक है। और जिस तरह से इजराइल में जो तबाही मचा रहा है, और इजराइल के अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो कहीं ना कहीं वो नाकाम साबित हो रहे हैं, चाहे आयरन डोम की बात करें, एरो की बात करें, या डेविल स्लिम की बात करें। जी तो राजीव बता रहे थे कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायली हर्मिस ड्रोन को मार गिराया, जिसकी आप तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बड़ी कामयाबी ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। ईरान, जैसा कि राजीव बता रहे थे, अपने एयर डिफेंस के लिए नहीं जाना जाता, इजराइल इसके लिए जाना जाता है, लेकिन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको आइडेंटिफाई किया, इसको न्यूट्रलाइज किया है। ये तस्वीरें हैं इजरायली ड्रोन की। इजराइल इस ड्रोन से हमला करने वाला था ईरान पर, लेकिन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको आइडेंटिफाई किया है और न्यूट्रलाइज किया है। और उस पर विस्तार से जानकारी के लिए कि कितना दमदार है ये ड्रोन और कितनी बड़ी कामयाबी है ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, इसे समझने के लिए एक बार फिर लौटते हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन के पास।
यही वही जो जगह है कि जहां पर जो है ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो ईरान के जो इजराइल का जो हार्मिस ड्रोन है उसको मार गिरा। और केवल ईरान जो है दावा ही नहीं कर रहा है, बल्कि जैसे आप देखिएगा ड्रोन आ रहा है, ड्रोन को जो मार गिराएगा उसकी सारी तस्वीर यानी दुनिया के सामने रख रहा है कि जिसका एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। और जो हार्मिस जिस यूएवी की बात होती है, जिस ड्रोन की बात होती है, जिसका लोहा पूरा दुनिया इजराइल कहता है कि मारने के लिए, उसको जो है जिस तरह से ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिरा है, एक बहुत बड़ी बात है। वो हार्मिस जिसको इसका इस्तेमाल जो है इजराइल जो है निगरानी के लिए करता है, विस्फोटक के लिए करता है और दुनिया के कई देशों में बेचता है। वो इजराइल का एक दावा है कि दुनिया का एक सबसे बेहतरीन जिसको कह सकते हैं यूएवी सिस्टम है, लेकिन उस यूएवी सिस्टम को ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम का मार गिराना कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है और ये भी बताता है कि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना मजबूत है। और ईरान जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल तस्वीरों के जरिए या सबूत के जरिए वो सामने रख रहा है। जी बिल्कुल, जो जैसा कि राजीव बता रहे थे, ईरान ने एक तरह से पूरी तरह न्यूट्रलाइज किया है इस इजरायली ड्रोन को जो हमले के लिए भेजा गया था ईरान की तरफ, लेकिन उसके एयर डिफेंस ने उसके आइडेंटिफाई किया और उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको मिल रही हैं एनडीटीवी पर। बढ़ते आगे अगली खबर की तरफ, जो इस वक्त है, अब तक ईरान के 500 लोगों की मौत की जानकारी आ रही है। 13 जून से अब तक 500 लोगों की मौत हो चुकी है, 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान की स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं आंकड़े, तो ये अहम है, ये आंकड़े अहम है। अब तक ईरान के 500 लोगों की मौत हुई है इस हमले में, इजराइल के हमले में, और 13 जून से अब तक 500 लोगों की मौत की बात ईरान मान रहा है। 3000 से ज़्यादा लोग इस युद्ध में घायल हुए हैं और ये जो आंकड़े हैं ये 13 जून के बाद है। इस बीच इजराइल ने ईरान को संदेश भेजा है कि वो युद्ध समाप्त करना चाहता है और तेहरान ने जवाब दिया है कि अभी समय नहीं आया है। ये कान न्यूज के हवाले से खबर आ रही है, इजरायली मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि इजराइल ने ये संदेश भेजा है, यानी कि शांति को एक मौका देना चाहता है, टेबल पर ईरान आए और शांति की बात करे। लेकिन ईरान का जो जवाब है, तेहरान की तरफ से जो जवाब गया है कि अभी वक्त नहीं है शांति की बात करने का, युद्ध समाप्त करने का। तो वाकई ईरान के तेवर इस वक्त काफ़ी कड़े और तीखे दिखाई दे रहे हैं, ख़ास तौर से अमेरिका की इस एंट्री के बाद ईरान कोई मौका अभी नहीं देना चाहता इजराइल को किसी तरह का कि शांति बहाली पर बात करने के लिए, एक टेबल पर आमने सामने बैठने के लिए। और मोहम्मद गजाली हमारे सहयोगी इसी मामले पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। गजाली, पेशकश हुई है लेकिन ठुकरा दी गई है, जो है हर तरफ से हो रही है, ना सिर्फ यूएस की तरफ से बल्कि इजराइल की तरफ से, पश्चिमी देशों की तरफ से, कि इस लड़ाई को रोका जाए। और कल जो है ईरान ने स्वीडन के जो राजनयिक उनके यहाँ पोस्टेड थे, स्वीडन के जो एम्बेसडर थे तेहरान में, उनके ज़रिए यूएस को एक चिट्ठी भिजवाई थी कि जो भी यूएस ने किया है वो गलत है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। और जिस तरह से ये लड़ाई, जिसको वॉर ऑफ अट्रिशन कहा जाता है, ये लड़ाई खिंचती जा रही है। हर दिन ईरान 5, 10, 15, 20 मिसाइल मार रहा है और उसमें भी कोई निश्चितता नहीं है कि उसके टारगेट क्या होंगे। ऐसे में और एक ये भी डर बना हुआ है कि यूएस के जो एयर बेसेस हैं, यूएस के जो सिटीजन्स हैं, जो फौजी हैं पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं, ईरान ने पहले ही कहा है कि वो उन पर भी हमला करेगा। कब करेगा, कैसे करेगा और कहाँ करेगा, ये अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में यूएस और इजराइल दोनों ही अब साफ साफ चाह रहे हैं कि जो भी अटैक हो गया अब जंग को ख़त्म किया जाए। खास करके पश्चिमी देश ये भी जानते हैं कि अगर ये जंग ज़्यादा लंबी चलेगी फिर शरणार्थियों वाला माहौल बनेगा, फिर शरणार्थी यहाँ से दूसरे देशों में जाएंगे, खास करके पश्चिम देशों में, और किसी भी जंग का जो असर होता है वो पश्चिम को झेलना पड़ता है। हालांकि गजाली ये बताइए कि अगर अमेरिका की एंट्री नहीं होती तो शायद तेहरान के तेवर कुछ और होते जब ये पेशकश होती। तो अमेरिका की एंट्री तो पहले दिन से है। इजराइल जिन हथियारों से हमला कर रहा है वो अमेरिका की तरफ से है, और ये बात सिर्फ ऑफिशियली और अनऑफिशियली के बीच की का फ़र्क है कि अमेरिका इस वॉर में कूद गया, अमेरिका इस वॉर में प्रवेश कर गया, क्योंकि कल अमेरिका ने अटैक किया खुद के वेपन्स के साथ, खुद के फाइटर जेट्स के साथ। लेकिन शुरुआत के पहले दिन से ही इजराइल के पास जितने हथियार जनरली आते हैं वो अमेरिका से ही आते हैं। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका नहीं आता तो जंग लंबी नहीं खिंचती, क्योंकि इस लड़ाई की तैयारी तो ईरान भी 40 साल से कर रहा है।
जब वो स्लोगन देते हैं डेथ टू अमेरिका या डेथ टू इजराइल, अमेरिका और इजराइल की पॉलिसीज़ को लेके जो आयतुल्लाह खामनेई कहते हैं कि हमारा ये नारा है, तो इस लड़ाई की तैयारी तो वो भी 40 साल से देख रहे हैं। हालांकि हमला अचानक हुआ है, लेकिन ये कहना कि तैयारी नहीं थी या वो भौचक्के हो गए या उनको कॉट बाय सरप्राइज कर लिया, ये गलती होगी। जी, तो फिलहाल आप कह रहे हैं कि ये जो खबर सामने आ रही है वो इजरायली मीडिया के हवाले से खबर आ रही है, औपचारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा है इजराइल ने? नहीं, औपचारिक तौर पर तीनों ही देश कभी नहीं कहेंगे कि वो जंग रोकने की मांग कर रहे हैं। हालांकि यूएस बार बार कह रहा है कि जंग हो चुकी है, हमला हो चुका है, अब बातचीत के लिए आओ। जंग रोकने की बात कहीं नहीं हो रही है। जंग रोकने की बात फिलहाल नहीं हो रही है। और इजरायली मीडिया के हवाले से जो खबर आई है कि बातचीत के लिए तैयार है इजराइल, शांति को मौका देना चाहता है, युद्ध खत्म करना चाहता है, लेकिन तेहरान ने सीधा जवाब दे दिया है कि अभी वक्त नहीं हुआ है। और ईरान के हमलों के बाद इजरायली शहरों में हड़कंप मचा हुआ है। टेल अवीव के एयरपोर्ट से तस्वीरें अब आ रही हैं। ईरान के मिसाइल हमले के बाद यहां सायरन बजने लगा, फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी, यात्रियों को बंकर में जाना पड़ा। तो लगातार जो सिविलियन एक तरह से जो बड़े इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो पावर स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, वहां पर अब इसका असर दिखाई दे रहा है। बंकरों में एयरपोर्ट के यात्री पहुंचे हुए हैं। इस बीच अम्मान से भारतीय नागरिकों का पहला जत्था रवाना हो गया। 160 भारतीय आज लौटेंगे भारत। इजराइल से अम्मान होते हुए ये होगी उनकी भारत की वापसी। फ्लाइट में लगे भारत माता की जय के नारे जब ये सभी अपने देश की तरफ बढ़े। तो एक तरफ इवैक्यूएशन चल रहा है, वहीं स्थानीय नागरिकों में एक तरह से हड़कंप है। आप तस्वीरें देख रहे हैं इवैक्यूएशन की। भारतीयों को आज वापस देश पहुंचाया जा रहा है। 160 भारतीयों को लेकर ये विमान भारत पहुंच रहा है। इजराइल से अम्मान होते हुए भारत की वापसी होगी इन लोगों की। और जैसे ही फ्लाइट ने उड़ान भरी तो भारत माता की जय के भी नारे लगे हैं। तो लगातार भारत सरकार इवैक्यूएशन में लगा हुआ है कि जो जहां भी स्थिति तनावपूर्ण है वहां से भारतीयों को तुरंत निकाला जाए, क्योंकि यहाँ रह रहे उनके परिवार काफ़ी परेशान हैं, चिंता में हैं और युद्ध जैसे हालात से निकालना इस वक्त भारत सरकार की प्राथमिकता भी है। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और अब नजर डालते हैं ईरान इजरायल युद्ध से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स पर। ईरान का इजरायल पर ताबड़तोड़ हमला जारी। आज इजरायल पर 15 मिसाइलें दागी। पूरे इजरायल में बज रहे हैं वॉर सायरन्स। इजरायल में लोगों को बम शेल्टर्स में भेजा गया। अशदोद शहर में ईरान का बड़ा हमला। ईरान के हमले का इजरायल ने दिया जवाब। राजधानी तेहरान में इजरायल के ताबड़तोड़ अटैक। तेहरान में कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर को उड़ाया गया। इजरायल ने ईरान के 6 बेस पर किया हमला। इजरायली मिलिट्री ने कहा ईरान के 15 एयरक्राफ्ट तबाह किए। F-14, F-5, AH-1 एयरक्राफ्ट तबाह करने का दावा। ईरान का दावा, इजरायल के ड्रोन को मार गिराया गया। बर्बाद हुए इजरायली ड्रोन की तस्वीरें जारी की। अमेरिका के हमले के बाद राष्ट्रपति पुतिन से मिले ईरानी विदेश मंत्री। मॉस्को में पुतिन के साथ हुई अहम मुलाकात। अमेरिका पर पलटवार की तैयारी में ईरान अपनी नौसेना का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान खामेनेई बोले दुश्मन को जवाब मिलेगा। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप का एक और बयान, कहा ईरानी साइट्स को ऐतिहासिक नुकसान। अमेरिका की स्ट्राइक एकदम सटीक। ईरान और इजरायल के बीच भीषण जंग जारी। इजरायली हमलों में ईरान के अब तक 500 लोगों की मौत। अमेरिकी हमले के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने पर विचार कर रहा है ईरान। दुनिया में पेट्रोलियम उत्पादन का 5वां हिस्सा जहाजों के लिए यहां से गुजरता है। नॉर्थ कोरिया ने ईरान पर हुए हमले की निंदा की है। यहां के सुप्रीम लीडर किम जोंग का बयान, कहा मिडिल ईस्ट में तनाव भड़का रहा है अमेरिका। और परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद कोई रेडिएशन लीक नहीं है, कहना है ईरान का। परमाणु ठिकानों पर हमले से भारी नुकसान नहीं, ये लगातार ईरान कह रहा है। अमेरिकी हमले के बाद अमेरिका ने किया था ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला। ऐसे 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर यह हमला किया गया था। और अब परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद कोई रेडिएशन लीक नहीं है, कह रहा है ईरान। परमाणु ठिकानों पर हमले से भारी नुकसान नहीं हुआ है, ये ईरान का दावा है। जबकि अमेरिका लगातार कह रहा है कि उसके निशाने पर सटीक था सारा फैसिलिटी और उसने तबाह किया है। और अमेरिका ने किया था ईरान के परमाणु ठिकानों पर कल ही हमला और उसके बाद अब ये खबर आ रही है। और अब कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से जम्मू जा रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट बिना लैंडिंग किए वापस लौटी है। फ्लाइट को वापस दिल्ली भेजा गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट नंबर
IX2564 बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा के पास। पल्लव, क्यों ये फेरबदल हुआ और क्या वजह रही इसकी? देखिए सिक्ता, ये एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान था जो दिल्ली से वाया श्रीनगर जा रहा था, वाया जम्मू। और जैसे ये विमान उड़ के जो है जम्मू एयरपोर्ट के पास पहुंचा तो वहां पे इसको जो है बताया जा रहा था कि पहले कुछ तकनीकी खराबी है, लेकिन अब जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि विमान वहां से ही वापस डाइवर्ट कर दिया गया दिल्ली की तरफ। हालांकि क्या तकनीकी खराबी थी, क्या उसे एटीसी के जरिए कोई सिग्नल नहीं मिल पाया, या उसे एयरपोर्ट से कुछ सिग्नल नहीं मिल पाया, या फिर कोई अन्य समस्या थी, इसको लेकर फिलहाल अब तक एयर इंडिया की तरफ से कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन ये बताया गया कि विमान को वापस दिल्ली लौटाया गया और वहां पर कुछ देर बाद दोबारा जो है इस विमान को जो है दिल्ली से जो है भेजा गया। लेकिन किन वजहों की वजह से ये विमान को डाइवर्ट किया गया, क्या तकनीकी खराबी थी, वो अब तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। हालांकि इंडिया से साफ तौर पे कहा है कि जो असुविधा हुई है उसके लिए हमें छेद है, लेकिन हम इसको जानने की कोशिश में लगे हुए कि आखिर क्या वजह है, किस वजह से ये जो है दिक्कत। तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली से जम्मू जा रहा ये विमान एयर इंडिया एक्सप्रेस का ये विमान है, ये तकनीकी कारणों की वजह से जो शुरुआती जानकारी आई है उसके मुताबिक वो वापस दिल्ली अब लौटाया गया है। क्यों ये फैसला लिया गया, इस पर हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। गुजरात के विसावदर और पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के बाद आप नेता अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की। इस जीत से उत्साहित केजरीवाल ने कहा कि साल 2027 में तूफान आने वाला है। लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा की जीत के बाद क्या केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे, इस सवाल पूछे जाने पर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं राज्यसभा नहीं जा रहा हूं। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति तय करेगी कि राज्यसभा कौन जाएगा। तो उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के खाते में अब 2 सीटें आई हैं, जिससे आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपने गुजरात की विसावदर सीट जीती है और पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ है। राज्यसभा से कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी हमारी, लेकिन मैं नहीं जा रहा, केजरीवाल नहीं जा रहा। आपने तो मेरे को कई बार भेज दिया अभी तक। मैं राज्यसभा में नहीं जा रहा, लेकिन कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है 2027 का, तो हम सोच सकते हैं कि अगर ये सेमीफाइनल है 2027 का और 2022 आंधी थी, तो 2027 तो तूफान आने वाला है। हम सोच सकते हैं कि जनता आम आदमी पार्टी के काम से कितनी खुश है। और हमारे सहयोगी गुरप्रीत चिन्नाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर से। गुरप्रीत, वाकई नया उत्साह है आम आदमी पार्टी में? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर इस बायपोल की बात करी जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस थी ऑपोजिशन पार्टीज़ के लिए भी और रूलिंग पार्टी के लिए। रूलिंग पार्टी के लिए ये था कि जो भी उन्होंने नीतियाँ बनाई हैं उसको इम्प्लीमेंट किया है, गुड गवर्नेंस दी है, क्या लोग इनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। वहीं राजनीति के जो पार्टियाँ थी, ऑपोजिशन पार्टियाँ थी, वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि अगर सेमीफाइनल, वो कह रहे थे ये सेमीफाइनल, अगर सेमीफाइनल में वो ये सीट ले लेते हैं तो उससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि लोगों का मूड क्या था। लेकिन कुल मिला के आम आदमी पार्टी ये सीट जीती है और जीत के बाद लगातार जश्न मनाए जा रहे हैं।